Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on A.R. Desai and its major contribution to Indian sociology. As you all know that A.R. Desai is one of the most important thinker which is asked in every exams like a BA, MA, NTA NET, RPSC, PGT, all exams of sociology. So in morning one of my student told me to make a video on this, so I thought let's make a video and help him. So yes, let's start and see Akshay Ramanlal Desai biography and contribution. In 1915, April 16, Akshay Ramandal Desai was born living life from 1915 to 1994 in Nadia in Gujarat, and he took his last breath on November 12, 1994 in Baroda. As you know, Akshay Ramanlal Desai is his full name, and he born on 16 April in Nadia in Gujarat, and he died in Baroda in Gujarat. His father name is Ramanlal Vasantlal Desai, inspired many youngsters as he was a well-known literature, and Akshay Ramanda Desai also took part in many movements of students in Baroda, Surat and Bombay. His father name is Raman Vasatlal Desai and he inspired many youngster, उन्होंने बहुत सारे youngster को inspire किया in his well known literature field. And Akshay Ramanlal Desai also took part in many women's movements which was took place in Baroda, Surat and Bombay. Then he went to the University of Bombay for his graduation and he got his law degree and PhD in sociology under the eyes of G.S. Gure in 1946 from the same university. Then A.R. Desai went to University of Bombay for his ग्रेजुएशन के लिए वो वहाँ पे गए. देन उनने लॉ की डिग्री ली, देन उनने पीएचडी करी सोशोलॉजी में. एंड यस, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ जी.एस. गुरे in and under the eyes of G.S. Gure in 1946 from the same university. And later in his life he became the professor in Bombay University and later become the head of the department. उसके बाद वो प्रोफेसर भी बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में और उसके बाद वो लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने, एचओडी भी बने. 1947 was the year he got married to नीरा देसाई. उनकी वाइफ का जो नाम था दैट इज नीरा देसाई, who participated in the area of women's studies. नीरा देसाई, as you all know, he is very popular and very popular for the women's studies. And around 1953 he became a member of Trotsky's Revolutionary Social Party and in 91 he resigned. 1953 में वो ट्रॉट्सकाइट्स रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी के मेंबर बने. देन उसके बाद 1981 में उनने रिज़ाइन कर दिया. A.R. Desai counseled and practiced dialectical historical modeling in sociological study. He was greatly influenced by he was greatly influenced by the work of Marx, Engels, and Leon Trotsky and study closely all their work. As you all know that A.R. Desai is greatly influenced by the most famous Western thinker, that is Karl Marx. And in all his study, he included his dialectical approach. So and he was greatly influenced by Marx also and Engels and Leon Trotsky and studied closely all their work. He took a modern Marxist approach to empirical investigation. जैसे कि उनने अब मार्क्सिस्ट अप्रोच को अपनी एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, इस चीज़ को मार्क्सिस्ट अप्रोच को यूज़ किया. मतलब उनकी जितनी भी स्टडी उनने की उसमें उनने जो अप्रोच यूज़ करी वो मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे, कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. अलॉन्ग विद द अदर इंडियन सोशोलॉजिस्ट अप्लाइड मार्क्सिस्ट मेथड टू स्टडी इंडियन स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रोसेस. और भी बहुत सारे जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं उनने भी मार्क्सिस्ट के मेथड यूज़ किए हैं अपनी इंडियन सोसाइटी की स्टडी करने में. एंड ही रिजेक्टेड all the interpretation of tradition related to religion, rituals and festivals. It is said to be a secular phenomena. वो उनने सारी चीज़ें सारे इंटरप्रिटेशन रिजेक्ट कर दिए थे ट्रेडिशन से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू, इफ इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया. एंड ही बिलीव इन द सेक्युलर फिनोमेना. Now, it is an economic aspect and originate and progress in economics. He find it in all the social institution. He doesn't see the existence of tradition in Western culture. His studies evolved around nationalism and configuration. His analysis of community development programs for economic progress, study between state and society, or relation between social structure and polity, urban and demographic programs of study on peasant movements. All these are based on Marxist method. उनने अपनी फील्ड में जितनी भी स्टडी करी, उनने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात करी, उनने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए स्टेट एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप को उन्होंने देखा. देन डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करी, पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी बात करी. सब में उनने एक ही मेथड यूज़ किया, दैट इज़ मार्क्सिस्ट मेथड.
ठीक है, अभी हम लोग आगे इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी देखने वाले हैं. ही बिलीव्स दैट इवॉल्विंग डेनियल इज टेकिंग प्लेस इन इंडियन प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द रिलेशन और लिंक विद कैपिटलिस्ट रूरल बुर्जुआ एंड स्टेट स्ट्रक्चर ऑल पुल्ड आउट फ्रॉम दी सोशल रूट्स. वो ऐसा मानते थे कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किससे लिंक कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम से और रूरल बुर्जुआ से लिंक कर रहा है. और यही रूट है, यही सोशल रूट है इन सब चीज़ों का, यही जड़ है. दैट इज़ द कैपिटल सिस्टम एंड द रूरल बुर्जुआ. वो ये मानते थे कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम और बुर्जुआ की वजह से आ रहे हैं. Now, to study the change in Indian society was evaluated by some Marxist sociology. A.R. Desai out, he was completely devoted and lived to explore and understanding different aspect of Indian social realities. बहुत सारी बुक्स पे काम किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे उन्होंने काम किया. लाइक फर्स्ट इज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो 1948 में आई, करंटली ऑपरेटिंग 1973, इमिनेट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1975, इशू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969, स्लम्स और अर्बनाइजेशन पे 1970 पे, इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट 1971, पीजेंट स्ट्रगल पे काम किया 1979 में, और इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984. Here this is the most important works of A.R. Desai, so please learn it with date because it is asked in many exams. Now, Desai also participated in political field of sociology. He offered the studies on peasant and struggle. Political field पे भी काम किया है, peasants और peasant struggles के बारे में उन्होंने बात करी. Desai also like D.P. Mukherjee, study Indian society through the eyes of Marxian. Desai also influenced and he also liked D.P. Mukherjee also, and he also study Indian society through the eyes of Marxian. इंडियन सोसाइटी की उन्होंने जितनी भी स्टडी करी है उनने भी मार्क्सियन अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि वो भी अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट बोलते थे. लेटर देसाई एंड पिलाई कैरिड अ स्टडी ऑफ स्लम्स. फिर देसाई ने पिलाई के साथ स्लम्स की स्टडीज़ करी. रूरल सोशोलॉजी ऑफ इंडिया एंड एडिटेड वर्जन वॉज पब्लिश्ड बाय हिम. और बाद में रूरल सोशोलॉजी एक बुक थी, वो जो एडिटेड वर्जन आया था वो इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई थी. तो देसाई एंड D.P. मुखर्जी बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड D.P. मुखर्जी कॉल्ड हिम दैट ही इज़ द मार्क्सोलॉजिस्ट. He used the Marxist approach in many fields. Now the major contribution of Desai. अभी हम देखेंगे कि मेन contribution क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, जैसे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पीस एंड स्ट्रगल, स्लम्स, हर एक चीज़ के बारे में. बट हम लोग यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उनके देखेंगे कि कौन कौन से हैं. फर्स्ट उन्होंने बात करी टाउन स्ट्रक्चर पे. टाउन स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल फाउंडेशन ऑफ इंडियन पैट्रियटिज्म, वर्क बैटल्स एंड पावर इन सोसाइटी. इनके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि टाउन स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने क्या बात करी. इन अ प्री ब्रिटिश एरिया इंडियन टाउन्स वर सेल्फ सफिशिएंट. प्री ब्रिटिश एरिया, ठीक है, उनने देखा कि प्री ब्रिटिश एरिया में जो टाउन्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके पास सब कुछ था, ठीक है, जो हर एक चीज़ जो होती है हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सब कुछ था. सो पीजेंट्स वर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन विलेज और टाउन्स. हेयर पीजेंट एंजॉय ट्रेडिशनल फैमिली राइट्स ओवर द लैंड. और लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी. तो ये जो पीजेंट्स थे वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे थे. एंड ही वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग द राइट्स ओवर द लैंड. उनका जो ज़मीन वगैरह थी, जो उनके लैंड के ऊपर जो राइट्स थे उनको भी बहुत अच्छे से वो लोग एंजॉय कर रहे थे. वॉट एवर वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड वॉज ट्रेडेड विद इन द विलेज एंड वॉज नॉट गॉन आउटसाइड द विलेज. जो भी चीज़ें वो लोग प्रोडक्शन करते थे वो उसको विलेज में ही ट्रेड करते थे. यानी वो जो बिज़नेस वो लोग करना चाहते थे अपने लैंड के थ्रू, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं उसको वो आउट ऑफ द विलेज सेल आउट नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे, पहले के लोग ऐसा मानते थे कि विलेज के बाहर कोई चीज़ हम ट्रेड कर रहे हैं, विलेज की चीज़ों को बाहर पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है. इसलिए वो उसको सिर्फ विलेज में ही ट्रेड करते थे. यानी जो बिजनेस होता था वो विलेज में ही होता था, बाहर नहीं जाने देते थे. द कल्चर एट द टाइम ऑफ प्री ब्रिटिश पीरियड वॉज फेड्यूल इन नेचर. और आपने देखा कि जो उस टाइम पे प्री ब्रिटिश एरिया पीरियड के टाइम पे जो नेचर था, ठीक है, यानी जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, ठीक है, जहाँ पे कोई क्लास नहीं थी आपकी. लाइक जैसे कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ और प्रोलेटरेट के बारे में बताया, ऐसी कोई क्लास नहीं थी. यानी स्लेव्स और मास्टर वाली कोई चीज़ नहीं थी. सब अपने अपने राइट्स एंजॉय करते थे और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था.
Change of Indian society. Now, the change from feudal society to capitalist resulted from the conquer of India by British. लेकिन ये जो चेंज आया feudal society से capitalist society में, जब हमारी सोसाइटी बदली, ठीक है, जब पहले कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, सब लोग अपने राइट्स एंजॉय कर रहे थे और जो बिजनेस भी हो रहा था वो भी विलेज में ही हो रहा था. लेकिन जब feudal सोसाइटी से जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और ये सब किसकी वजह से हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्कर ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश. क्योंकि अब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म विच एक्सपर्ट द ओल्ड रिफॉर्म. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, ठीक है, इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने चेंज कर दिया, पुराने वाले को हटा के नए वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ गए वो. एंड दिस चेंज इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ आर्टिशंस. और इसी चेंजेस की वजह से, ठीक है, जो भी चेंजेस वो लेके आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भी लेके आए, इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिशंस को इस चीज़ पे सफ़र करना पड़ा, बहुत इम्पैक्ट हुए वो इस चीज़ से. विद कैपिटलिस्ट सिस्टम, एग्रीकल्चर लेबर, मर्चेंट, टेनेंट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर इवॉल्व. कमर्शलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, लैंड, वर्क, टूल, प्लेस, ऑल दिस थिंग गेव बर्थ टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी इन रूरल एरिया. एंड ऑल दिस गेव राइज इन यूनिफाइंग इंडियन सोसाइटी. अब देखो, इसके बाद बहुत सारे आर्टिशंस को इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ा. उसके बाद विद द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एग्रीकल्चर लेबर्स, जो भी लेबरर्स थे, मर्चेंट्स थे, टेनेंट्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, मतलब न्यू क्लासेस आने लगी. हर एक चीज़ का कमर्शलाइजेशन होने लगा. एग्रीकल्चर अब एक तरीके से बिजनेस बन चुका था, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसको बाहर सेल आउट करने लगे. वर्क, टूल, प्लेस एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग गेव बर्थ टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी इन रूरल एरिया. ये सब चीज़ें जब हुई, यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में जो रूरल एरियाज़ में चेंज आया, वो बहुत बुरा चेंज आया. और इसने एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, लोगों के बीच में, क्लासेस के बीच में एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया और पॉवर्टी होने लग गई, बहुत ज़्यादा गरीबी आने लग गई रूरल एरियाज़ में. एंड ऑल दीज गेव राइज टू यूनिफाइंग इंडियन सोसाइटी. नाउ पेट्रोटिज्म के बारे में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं. देसाई यूज मार्क्सिस्ट अप्रोच टू एनालाइज पेट्रोटिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ऑल द बुक बाय देसाई वर पब्लिश्ड इन 1948 बट दे बिकम पॉपुलर इन late 60s and 70s. Out of one of his full length work was on background of Indian nationalism. It was proved to be a trendsetter. According to him, Indian nationalism is output of materialistic conditions which were built by British colonialism. देसाई ने मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ करके पेट्रोटिज्म के बारे में बात करी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और जो भी बुक्स उनकी पब्लिश हुई 1948 में, उनको जो पॉपुलैरिटी मिली वो 60s और 70s में जाके मिली. ऐसे उनका बहुत फेमस वर्क था, दैट इज़ द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एंड इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एवरी एग्जाम. Like NTA always asked about these books, and in every paper it is very important, so please learn it. And social background of Indian nationalism was proved to be a trendsetter. According to him, Indian nationalism is the output of, वो ऐसा मानते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो हुआ, ठीक है, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ मटेरियलिस्टिक कंडीशन. ये उसी चीज़ का, इंडियन नेशनलिज्म किसका आउटपुट है? दैट द ब्रिटिश, बट दैट इज़ अ मटेरियलिस्ट कंडीशन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनिज्म, और इट इज़ अ बिल्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनिज्म. ये बोलते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक कंडीशन जो आई हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म. ब्रिटिशर्स ने आके हमारे इंडिया में कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया, और उनने अपने अपने रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए. उनने हमारी पूरी चीज़ों को चेंज कर दिया, और हमारी जो सोसाइटी थी वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ने लगी, और हमारी सोसाइटी में गरीबी आने लगी, यानी पॉवर्टी आने लगी. अकॉर्डिंग टू हिम, इंडियन नेशनलिज्म इज आउटपुट. ओके, इट इज़ अगेन रिपीटेड, सो लिव इट. वर्कर्स बैटल्स. नाउ बुक लाइक प्रीग्जिन स्ट्रगल्स इन इंडिया एंड एग्रीगेन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज ऑथर्ड बाय देसाई. इनकी वो एक और इम्पॉर्टेंट बुक, दैट इज़ पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया एंड एग्रीगेन स्ट्रगल इन इंडिया, ये इंडिपेंडेंस के बाद में आई, और इनको भी किसने ऑथर किया था? देसाई ने ऑथर किया था. देसाई कंबाइन ऑल द इंपॉर्टेंट सफरिंग्स ऑफ पीजेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. देसाई ने इस बुक में बताया कि किस तरीके से पीजेंट्स ने सफ़र किया ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्या क्या उनको प्रॉब्लम हुई, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरीके से उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए, किस तरीके से वो काम करते थे, उनको वेजेस नहीं मिलती थी, क्या उनकी कंडीशंस थी, क्या क्या उन्होंने सफ़र किया, सब कुछ देसाई ने पीजेंट स्ट्रगल्स में बताया. एंड ही डिस्प्लेस्ड एंड देन एंड नाउ द स्ट्रगल्स ऑफ दीज पीजेंट्स. उस टाइम पे और इस टाइम पे इनका क्या स्ट्रगल्स था, पीजेंट्स का कितनी प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी, ये सब इनने अपनी बुक्स में बताया कि किस तरीके से वर्कर्स ने
बैटल किया इस चीज़ को और किस तरीके से सफ़र किया. देन इन वन ऑफ हिज राइटिंग स्टेट एंड सोसाइटी ही क्रिटिसाइज हाउ एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट आर एक्सेप्टिंग मॉडर्नाइजेशन. फिर उनकी एक बुक आई स्टेट एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट्स की वजह से लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया. ए आर देसाई लेटर commented on the non-appearance of examination of class role, class character and monetary tough thinking a function of era of independence stated by Marxist. He further sought subject of cruelty of state and protection from it. मतलब ए आर देसाई ने कैसे बताया, लास्ट में उन्होंने कमेंट किया कि कोई चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है, क्लास रोल के बारे में बात नहीं हो रही है, क्लास कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है. देन थिंकिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ एरा ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस बाय मार्क्सिस्ट, इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है. और किस तरीके से लोग एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से, ठीक है, हमारा जो भी एक एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, उसकी वजह से लोग किस तरीके से ईजिली मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने लगे. एंड ही फर्दर सॉट सब्जेक्ट ऑफ क्रुएल्टी ऑफ स्टेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट. और उन्होंने स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा उसके बारे में, स्टेट के बारे में गलत बात बोली स्टेट एंड सोसाइटी में. Okay, so yes, this is all about it. So it is a brief contribution of A.R. Desai, which is going to be helpful for your exams, in all your exams. So please like it, share it and subscribe it, and please share with your friends. And please let me know what kind of videos you want from my channel, and comment down, and please give your feedback in the comment section. If you like my videos, then please like it, share it and subscribe it, and give your feedback in the comment section, and let me know about what kind of videos you want from me. So yes, this is all about it. Thank you so much. Until then, take care and bye bye. See you in the next video.